ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਜੇ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਸਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਲਦਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਫ ਸੈੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਇਨਵਰਟਿਡ ਯੂ ਟਿਊਬ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੱਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਊਟਰਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ ਐਨੋਡ ਟੂ ਕੈਥੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਨੋਡ ਤੋਂ ਕੈਥੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਰੂਲ ਫਰੋਮ ਕੈਥੋਡ ਟੂ ਐਨੋਡ। ਸੋ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ। ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਨੋ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਆ, ਐਨੋਡ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਕੈਥੋਡ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈੱਲ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸੈੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਾਪਰ ਦੀ। ਨੀਚੇ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬੀਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 'ਚ ਆਪਾਂ 1 ਮੋਲਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆ, ਇੱਕ 'ਚ 1 ਮੋਲਰ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਾਪਰ ਦੀ। ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਦੇ ਕੋਲ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਕੋਲ 'ਚ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਐਮੀਟਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਐਮਐਫ ਇਹਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਐਨੋਡ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ? ਕੈਥੋਡ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, एनोड केड़ी इलेक्ट्रोड है? नेगेटिव। और कैथोड केड़ी इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इत्थे जिहड़ा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो इत्थे होना, इलेक्ट्रॉन्स निकलने इत्थे आ। जिंक दी रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स की करने लूज करने आ। फिर इन्हां दोहां नूं जे कादे नाल जोड़ देना आपां ने? साल्ट ब्रिज बनाउणा नहीं भुलना आपां ने। इत्थे मैं शॉर्टकट बना दिंदी हां डायग्राम। ये की है साडा साल्ट ब्रिज। लोड पैण ते इहदे विच इलेक्ट्रोलाइट भरे हुए आ, आयंस हैगे आ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਇਨਸ ਦੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੋਡ ਪਊਗੀ ਉਹ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਰੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈੱਲ ਬਣਾਈਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਈਦਾ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹਾਫ ਸੈੱਲ। ਉਲਟੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨੂੰ ਐਨੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ। एनोड केड़ी इलैक्ट्रोड हैगी है? नेगेटिव इलैक्ट्रोड। क्यों नेगेटिव आ? क्योंकि इत्थे लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन शुरू होगा, तुहाडी पत्ती ने इलैक्ट्रॉन लूज करने हैं, इत्थे लॉस होना, परले पासे रिडक्शन च की होना? गेन होना। सो अगर इत्थे लॉस हो रहा है तो इलैक्ट्रॉन्स निकलणगे, ओही इलैक्ट्रॉन तार दे राही दूसरी इलैक्ट्रोड कोल जाणगे। सो इलैक्ट्रॉन्स दे निकलण करके इलैक्ट्रॉन कोल नेगेटिव चार्ज होण करके इस इलैक्ट्रोड नूं जे किहड़ी इलैक्ट्रोड दा नाम देवांगे आपां? नेगेटिव इलैक्ट्रोड। दूजे पासे जाके इलैक्ट्रॉन खत्म हो
कॉपर आइंस होंदे आ ते सल्फेट आइंस होंदे आ सोल्यूशन दे विच किहड़े दो तरह के आइंस होणगे कॉपर आइंस एंड सल्फेट आइंस। सल्फेट आइंस दा पार्टिसिपेट नहीं करते, कॉपर आइंस ने इलैक्ट्रॉन लैणे आ। इसी तरह इधरले कोल च तुहाडे कोल जिंक आइंस होणगे, नाल किहड़े होणगे सल्फेट आइंस। सल्फेट आइंस ने काम नहीं करना दोने पासे, अपने कोल इधर जिंक आइंस काम कर रहे हैं, उधर कौन कर रहे हैं कॉपर आइंस। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बना रही है और दो इलेक्ट्रॉन का गेन करके कॉपर आयन खत्म होकर की बन रही है कॉपर बन रही है। ये तो थोड़ी याद है। सो ये जी इलेक्ट्रोड है इतने जाके जी इलेक्ट्रॉन्स आ वो ले जाएंगे जिस वजह नाल इलेक्ट्रोड केड़ी शो होगी पॉजिटिव। सो ये याद रखना तुसी तीन चार चीज़ां कि एनोड ते ऑक्सीडेशन हुंदी, एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड हुंदी, कैथोड ते रिडक्शन हुंदी। कैथोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नूं कहा जांदा और दोनों नूं मिला के कंप्लीट सैल बनदा। अद्धे सैल दा कोई वैल्यू नहीं, कोई मुल नहीं है, कोई कैलकुलेशन असीं हाफ सैल नाल नहीं कर सकते। ठीक है। सो हुण है आ तां असीं इदां सैल बना के दिखाया। हुण इस बने हुए सैल नूं कि असीं होर तरह रिप्रजेंट कर सकते हैं, वो साडा टॉपिक है अज दा। सो उहनूं रिप्रजेंट रजे किद्दां करीदा हुण मैं वो दिखानी तुहानूं। मैं आ रिएक्शन नूं कंप्लीट करके पहलां लिखदी हां दुबारा जिहड़ा इत्थे चल रहा है तुहाडे सामने। इत्थे रजे दो चीज़ां हो रही, एक रिएक्शन एनोड ते चल रहा, एक किहड़ी इलैक्ट्रोड ते चल रहा कैथोड ते। हुण जिहड़ा इलैक्ट्रोड जिहड़ा रिएक्शन एनोड ते चलदा वो ऑक्सीडेशन हुंदा, सारा नाल नाल आपां देख सकते हैं। जिहड़ा कैथोड ते चलावांगे वो की होएगी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस शो करांगे। सो जिंक पहला सॉलिड पत्ती सी, लॉस आपां दूजे पासे इलैक्ट्रॉन्स कढ के दिखाई दिया, ये +2 च कन्वर्ट कर गई, प्लस कितने इलैक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया 2। रिडक्शन दे विच की कीता आपां ने कॉपर +2 आइंस, इधर आइंस इलैक्ट्रॉन्स लैणगे। सॉलिड चीज़ ने तो इलैक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करने हैगे, आइंस ने लैणे आ जिहदे कोल कमी हुंदी आ। +2 ने 2 इलैक्ट्रॉन लैके ये उल्ट बन गई, कॉपर की होगी जमनी शुरू होगी, ये सॉलिड होगी। सो साडे कोले दो रिएक्शनस चल रहे हैं, हाफ सैल एक दे विच ते दूजे दे विच। क्लीयर है। हुण इहनूं रिप्रजेंट असीं किद्दां कर सकते हैं। हुण पहलां सारा समझ आ गया ना कि की हो रहा है, आपां पहलां भी कीता। हुण रिप्रजेंटेशन किद्दां करनी है रजे। रिप्रजेंटेशन करन लगे मोरे की लिखीदा हुंदा, हुण मैं उपर करके दिखानी तुहानूं रिप्रजेंटेशन ऑफ द सेल। हुण आपां डायग्राम जिहड़ी है वो मटे दिंदे आ ताकि मैं तुहानूं लिख के दिखा देवां कि रिप्रजेंट किद्दां करोगे सैल। बना के नहीं रिप्रजेंट करना, बिना बनाए किद्दां करीदा। हुण डायग्राम ही आपां ड्रॉ करांगे। रिप्रजेंटेशन दे विच रजे जिद्दां तुसीं बनाउने आ लिखना भी उदां। मोरे की लिखी दी है रजे एनोड दा रिएक्शन, पिछे किहदा लिखोगे कैथोड दा। हुण एनोड दे रिएक्शन नूं कंप्लीट इदां नहीं लिखना हैगा, इलैक्ट्रॉन्स तां घट हो जाते हैं। शॉर्टकट फॉर्म च किद्दां लिखांगे, जिंक सॉलिड सी, एनोड ते की रिएक्शन होया रजे पहला आपां एनोड हाफ सेल लिखांगे Zn, सॉलिड सीगी इत्थे सॉलिड पा लो, ओब्लिक इलैक्ट्रॉन्स शो नहीं करने, वो कट हो जाते रिएक्शन दे विच। Zn काहदे च बदल गई, Zn +2 प्लस 2 इलैक्ट्रॉन जिहड़े इहनूं एक्वस च पा दिंदा क्योंकि ये जिहड़े आयंस हुंदे आ ना ये नीचे फिर पानी च ही आ जाते हैं अपने कोल। सो ये बन गए जिंक आयंस। आ हो गया तुहाडा अद्धा सैल रिप्रजेंट हो गया। उस तो बाद तुसीं दो लाइनां लाउणीआं, ये दो लाइनां की दिखाणगीआं रजे साल्ट ब्रिज, क्योंकि साल्ट ब्रिज नाल आपां दोने हिस्से जोड़े हुए हैं। क्लीयर। दो लाइन्स साल्ट ब्रिज दियां, एक लाइन जिहड़ी होएगी तुहाडी ओह सैल दा रिएक्शन दिखा रही है। हुण दूजे पासे आ गई कैथोड, कैथोड ते की रिएक्शन चल रहा है, कॉपर सॉलिड नहीं टुट रही, हुण टुटण वाला नहीं चल रहा। हुण कॉपर आइंस जुड़ के कॉपर सॉलिड बन रही है, उल्टा रिएक्शन। इधर की होया जी लॉस, इधर की होया गेन। सो लॉस वाली इक्वेशन च आपां आ मोरे लिख लेना, फिर एदी जगह ते की पाता लाइन पाती, फिर आ लिख लिया इलैक्ट्रॉन रिप्रजेंट नहीं करने। जदों तुसीं रिडक्शन दा लिखना फिर आ चीज़ मोरे आ जाऊगी, इलैक्ट्रॉन कट दांगे, आ लाइन दे की हो जाएगी पिछे आ जाएगी। या सानू जवानी भी पता है भी जिहड़े रिडक्शन दे विच आयंस हुंदे आ वो इलैक्ट्रॉन गेन करदे, इत्थे एक्वस पा लो सिंगल लाइन, वो काहदे च कन्वर्ट हो रही है कॉपर सॉलिड। देखो क्लीयर होया। सो दोनों तुहानूं सैल का पता लगा कि लॉस शो करना होवे तां पहलां मोरे सॉलिड लिखीदा, उन्होंने तोड़ के दिखा दईदा तो लॉस हो गया। जो गेन शो करना होवे फिर मोरे सॉलिड नहीं लिखना, आइंस मोरे लिखो, पिछे की लिखो सॉलिड बन गया क्योंकि इलैक्ट्रॉन गेन कर ले। हम दोबारा चेक कर लो, आ देखो जिंक सॉलिड टूट गई जिंक आइंस दे विच, एक ही होगी रजे ऑक्सीडेशन, साल्ट ब्रिज,
कॉपर आयंस टुट के की कॉपर आयंस ने इलैक्ट्रॉन गेन करके की बनाती कॉपर सॉलिड, एक ही होगी रिडक्शन। दिस इज नोन एज रिप्रजेंटेशन ऑफ ए सैल। अगर आप आ कल्ली क्वेश्चन लिखी हो आप पछाण सकते हैं कि आ साडा ऑक्सीडेशन हाफ सैल है और जिंक ऑक्सीडेशन कर रही है, आ रिडक्शन हाफ सैल है और कॉपर जी साडे को रिडक्शन कर रही है। सो इतों सारा क्लीयर हो जाता और विच असीं साइड ब्रिज रिप्रजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज रिप्रजेंटेशन ऑफ सैल। याद ये रखना एनोड पहला लिखनी है, कैथोड की लिखनी है रजे बाद दे विच। और ये भी याद रखना कि एनोड किहड़ी इलैक्ट्रोड है, बार बार लिखते रहना तुसीं ताकि भुल ना जाए। एनोड इज नेगेटिव इलैक्ट्रोड एंड कैथोड इज ए पॉजिटिव इलैक्ट्रोड। दिस इज नोन एज रिप्रजेंटेशन ऑफ सैल। उस तो बाद तुसीं इहदी रिप्रजेंटेशन दे थल्ले इत्थे लिख भी सकते हैं कि इत्थे की हो रही है रजे ऑक्सीडेशन और इधर की हो रही है रिडक्शन। ये सारिया चीज़ां तुहानूं लिखणियां पैणगियां, फिर तुहाडी रिप्रजेंटेशन बिना बनाए क्लीयर हो जाएगी कि साडे सैल दे विच दो पत्तियां असीं वरतीआं, एक जिंक दी ते एक कॉपर दी। जिंक जिहड़ी आ असीं ओह लॉस लई वरती है, कॉपर असीं काहदे लई वरत लई है, गेन दे लई वरती है। लॉस वाले नूं असीं ऑक्सीडेशन बना ली जिहड़ी एनोड ते होगी, गेन वाले नूं असीं रिडक्शन बनाई जिहड़ी कैथोड ते होगी। दिस इज नोन एज रिप्रजेंटेशन ऑफ ए सैल। उस रिप्रजेंटेशन तो बाद हुण अपने कोल नैक्सट टॉपिक आ जांदा। सो इहदा पता लग गया ना किद्दां रिप्रजेंट कर सकते हैं सैल नूं। इसे कल्ले दी रिप्रजेंटेशन तुसीं सीख लैणी है जिहड़ा आपां जिंक कॉपर बनाया। नैक्सट टॉपिक अपने कोल वो भी इत्थे समझ आ जाना तुहानूं। नैक्सट है अगला टॉपिक इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सारा नहीं करना तुसीं, यदि मैं क्वेश्चन दूंगी तो कि तुसीं डेफिनेशंस करनी है पर समझना है कि इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की है। मैं जो दो हाफ सैल बनाए से उत्थों ही तुहानूं समझा देना। इलैक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल जिहड़ा हुंदा ना अपने कोल डिफरेंस हुंदा आ बिटवीन पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्जिस दे विच जिहड़ा सैटअप हो जांदा उहनूं असीं पोटेंशियल कहने आ। हुण जिहड़े असीं दो हाफ सैल रजे बना रहे हैं ना उन्हां दे विच एक पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप हो जाता जिस वजह के नाल इलैक्ट्रॉन्स का फ्लो जिहड़ा एक पासे तो दूजे पासे तक कंटीन्यूअसली चलता रहता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस नूं ही असीं जिहड़ी है इलैक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस कहने आ। इलैक्ट्रोड हुंदा जिहड़ा कल्ले कल्ले दे विच होऊगा। हुण आपां दो हाफ सैल बनाए सी, एक ऑक्सीडेशन का एक किहड़ा बनाया रिडक्शन का। सो ऑक्सीडेशन दे विच जिहड़ा पोटेंशियल नोट होऊगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन गया, जिहड़ा रिडक्शन दे विच पैदा हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिहड़ा दोनों का डिफरेंस होएगा रजे वो टोटल ईएमएफ ऑफ द सैल, यानी वो टोटल पावर होएगी सैल की कि कितनी पावर दे विच कितनी वोल्टेज दे विच कितना वोल्ट जिहड़ी हैगी आ सप्लाई सैल दे रहा आ। उन्हां दोवां दा डिफरेंस असीं कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हुण आपां पहला इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नूं समझीए। इलैक्ट्रोड पोटेंशियल नूं समझण लई मैं एक इलैक्ट्रोड बना दिंदी आं। आपां रफ जिहा लै लैंदे आपां हाफ इलैक्ट्रोड लै लैंदे आं। आपां बना जिहड़ी मर्जी पत्ती मैंने कर दी, सपोज ये समझण लई कीता कॉपर डबोती इनदा कॉपर सल्फेट। हुण होया कि इलैक्ट्रोड अपने कोल दो ही काम करदियां, एक लॉस का एक गेन का। पहले आपां लॉस देखते हैं। मान लो एक ऑक्सीडेशन सैल आ और साडी इलैक्ट्रोड की करती है इलैक्ट्रॉन लूज करती है। जदों इलैक्ट्रॉन लूज करती है तो इलैक्ट्रॉन्स राजे बाहर आते हैं, बाहर निकलते हैं, वो तार के राही दूजे पासे जाने होंगे आ। सो जो बाहर निकलते हैं तो इत्थे इलैक्ट्रोड के आले दुआले थोड़े ਜਿਹੇ इलैक्ट्रॉन्स की हो जाते हैं जमा हो जाते हैं, जिहदे नाल साडी इलैक्ट्रोड के उत्ते किहड़ा चार्ज शो पैदा होना शुरू हो जाता है नैगेटिव। बदले दे विच की हुंदा, मान लो कापर जिहड़ी टुट रही है खुर रही है, जदों ये खुरूगी पक्का इचों आयंस बनणगे ते तां ही इलैक्ट्रॉन बाहर निकलणगे। आ जिहड़े आयंस आ ये कित्थे मूव करन लग जांदे आ रहे सोल्यूशन च आउण लग जांदे तो ऑलरेडी आपां कीता होया इत्थे आउणगे होर कित्थे जाणगे, इन्हां ने तां नहीं तार राही जाना, ये तो सोल्यूशन च आ जाणगे। सो इत्थे थल्ले पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग जाता, उपर किहड़ा हो जाता नैगेटिव। फिर साल्ट ब्रिज नूं मेनटेन तो करता ही करता, लेकिन इन्हां दे विच एक डिफरेंस पैदा होना शुरू हो जाता। थोड़ी देर तक पहला इलैक्ट्रॉन घट होंदे आ, फिर ये प्लस घट होंदा, हौली हौली किदां दा टाइम आंदा जदों इक्विलिब्रियम जा बन जाता दोहां च, किहदे विच नैगेटिव चार्ज ते पॉजिटिव चार्ज च। जदों इक्विलिब्रियम बन गया फिर सानूं नैगेटिव वखरा सैपरेट हो जाता, पॉजिटिव वखरा सैपरेट हो जाता, एक डिफरेंस आ जाता पॉजिटिव नैगेटिव दे विच। दिस डिफरेंस इज नोन एज इलैक्ट्रोड पोटेंशियल। ਇਹਦਾ मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सैल च भी पोटेंशियल हुंदा, रिडक्शन हाफ सैल च भी पोटेंशियल हुंदा, और दोनों का जिहड़ा डिफरेंस हुंदा आ वो भी पोटेंशियल डिफरेंस हुंदा टोटल, वो टोटल हुंदा जिहड़ा सानू रीडिंग तो नोट हुंदा, कल्ले कल्ले का नहीं पता लगता, टोटल पता लग जाता कितना डिफरेंस हैगा। सो उन्होंने असीं बोलते हैं EMF ऑफ ए सैल। अगला टॉपिक आ जाना अपने कोल इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं सैल की कितनी पावर है।
सो आ तो मैं तुहानूं ऑक्सीडेशन का समझाया भी इलैक्ट्रोड नैगेटिव बन गई, उहदे कंपैरिजन च सोल्यूशन की बन गया पॉजिटिव। इहदा मतलब पोटैंशियल पैदा किहदे विच हुंदा, इलैक्ट्रोड ते सोल्यूशन च पैदा हुंदा। हुण मैं जे उल्ट लवां, मैं रिडक्शन वाली लैके देख लैंदी हाँ। रिडक्शन वाली च जे की होऊगा, गेन होएगा, ठीक है ना। रिडक्शन च उल्ट कर लैंदे आपां, रिडक्शन च इलैक्ट्रॉन नहीं इकट्ठे होने, फिर इलैक्ट्रॉन जमा नहीं होने। रिडक्शन च की होगा, इसे च आपां रिडक्शन करके देख लैंदे आं। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण इत्थों कापर आयन्स जिहड़े होणगे ना सोल्यूशन दे कापर आयन्स, वो दो इलैक्ट्रॉन जिहड़े तार राहीं उपर आउणे आ इलैक्ट्रोड दूजी वल्लों, उहनूं गेन करके की बनाउणगे, कापर सॉलिड। जिहड़ी कापर इत्थे की होण लग जांदी है, जमा होण लग जांदी है। सो मतलब इत्थे इलैक्ट्रॉन्स जमा नहीं होणगे, इत्थे इलैक्ट्रॉन्स की हो जाणगे, खत्म होने शुरू हो जाणगे। तुहाडा पॉजिटिव चार्ज जिहड़ा आ अंदरों खत्म हो जाऊगा, इलैक्ट्रॉन जिहड़े इत्थों खत्म हो जाणगे, तो इलैक्ट्रोड पॉजिटिव की जगह नैगेटिव की जगह किद्दां नज़र आऊगी, पॉजिटिव। और सोल्यूशन च किहड़े आयन्स वध जाणगे, कॉपर आयन तां मुक्क जाणगे, उहदे बदले अंदर किहड़े आयन्स हैगे अपने कोल, नैगेटिव सल्फेट आयन्स। तो सोल्यूशन की बनना शुरू हो जाएगा, नैगेटिव। उल्ट हो गया, हुण इलैक्ट्रोड पॉजिटिव बन जाती है और सोल्यूशन की कंपैरेटिवली बनन लग जाता नैगेटिव। हौली हौली दोहां दे विच एक डिफरेंस पैदा हो जाता, इक्विलिब्रियम आ जाता, तो दोनों चार्ज सैपरेट हो जाते हैं। उस टाइम असीं कहने कि इलैक्ट्रोड पोटैंशियल पैदा हो गया। फिर दोनों इलैक्ट्रोड्स का इलैक्ट्रोड पोटैंशियल दे विच डिफरेंस कैलकुलेट करना हुंदा, जिन्हों असीं EMF सैल दी बोलते हैं। सो देखो क्लीयर होया इलैक्ट्रोड पोटैंशियल। सो इलैक्ट्रोड पोटैंशियल जिहड़ा हैगा ऑक्सीडेशन पोटैंशियल ते रिडक्शन पोटैंशियल दो तरह का कैलकुलेट होएगा। जिहड़ा तुसीं लॉस वाले करोगे वो ऑक्सीडेशन पोटैंशियल आ, लॉस करन दी पावर इलैक्ट्रोड दी। अगर गेन करन दी पावर ज़्यादा तो रिडक्शन पोटैंशियल पैदा होएगा। यानी पोटैंशियल तो सानू पावर पता लगूगी कि किस इलैक्ट्रोड की कितनी पावर है लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन की और कितनी पावर है गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन की। सो ये दो तरह का की हो गया अपने को पोटैंशियल। और पैदा किद्दां होया, इलैक्ट्रोड दे विच पैदा होया ते थल्ले सोल्यूशन च हो गया। ऑक्सीडेशन दे विच इलैक्ट्रोड ने इलैक्ट्रॉन लूज करने सी ते इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रोड के आले दुआले इकट्ठे हो गए, इलैक्ट्रोड की बन गई नैगेटिव, सोल्यूशन उहदे कंपैरेटिवली की बन गया पॉजिटिव। जदों रिडक्शन की बारी आई, इलैक्ट्रॉन साडे इलैक्ट्रोड ते खत्म हो गए क्योंकि वो गेन करन लग गए, गेन हो गया इलैक्ट्रॉन्स का, तो इलैक्ट्रोड पॉजिटिव शो हो गई और नीचे सोल्यूशन की बन गया, नेगेटिव बन गया, उदों फिर पैदा हो गया। सो दो टाइप का तुसीं इलैक्ट्रोड पोटैंशियल कैलकुलेट करना है। वन इज इलैक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलैक्ट्रोड पोटैंशियल आ गया, ऑक्सीडेशन पोटैंशियल। दूसरा किहड़ा आ गया, रिडक्शन पोटैंशियल। इन्हां दोनों दी तुसीं डेफिनेशनस कर लैणियां। उस तो बाद एक होर चीज़ ऐड करनी है, जिहड़ी डायग्राम जिहड़ी ड्रॉ हुई हुई आ, आह वाली इलैक्ट्रोड की है। हुण जदों असीं इलैक्ट्रोड पोटैंशियल कढ लैंदे ना राजे, आपां इरेज करिए, फिर मैं अगला दसदी हां तुहानूं। सिंपल जी चीज़ रह गई। हुण मान लो असीं इलैक्ट्रोड पोटैंशियल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पहली गल तो यह है कि साडे कोल कोई मैथड नहीं है कि असीं ऑक्सीडेशन हाफ सैल का पोटैंशियल वखरा कढ लईए, रिडक्शन का वखरा कर लिए, फिर डिफरेंस करिए। नो, देयर इज़ नो मैथड ऑफ कैलकुलेशन या मेजरमेंट का नहीं है, क्योंकि हाफ सैल कल्ला वर्क ही नहीं करता। फिर सानू पता की लगता, सानू टोटल पोटैंशियल का डिफरेंस पता लगता, कल्ले कल्ले का पता नहीं लगता। एक मैंने ऑक्सीडेशन बनाया, एक मैंने रिडक्शन। जे मैं कहां भी इस इलैक्ट्रोड का पोटैंशियल कितना, तो मैनू नहीं पता। जे मैं कहां इस इलैक्ट्रोड का कितना, तो मैनू नहीं पता। मैनू की पता चलिया रीडिंग दे विचों जिहड़ी मैं टोटल लै रही हाँ, वोल्टमीटर फिट किया होया, वो टोटल उन्होंने दोवां का डिफरेंस शो कर रहा। सो प्रॉब्लम आ जाती ना, इसका मतलब सिंगल इलैक्ट्रोड हाफ का किद्दां कढांगे। फिर टोटल दे विचों चलो टोटल तो सानू पता लग गया, पर टोटल के नाल नाल आपां नूं एक इलैक्ट्रोड का पता होना जरूरी है। अगर एक इलैक्ट्रोड का पता होगा, दूजी का असीं घटा के कढ लांगे। समझ आ गई गल दी कि नहीं। एक इलैक्ट्रोड ऑक्सीडेशन, एक इलैक्ट्रोड रिडक्शन, दोनों का डिफरेंस पता चल रहा आपां नूं। जे दोवां का डिफरेंस पता लग गया, एक इलैक्ट्रोड का घट्टो घट पता लग जाए आपां नूं, दूजी का तो फिर आपां घटा के कढ ही लवांगे। क्लीयर हुई कि नहीं। एक रकम 6 आ, ठीक है, दूजी रकम कितनी है मैनू नहीं पता, पर मैनू दोहां रकमां दा डिफरेंस कितना पता आ कि 2 आ रहा। फिर मैनू अपने आप पता नहीं लग जूगा 6 चों 2 घटा के कि इहदा मतलब 4 रह गई, ठीक है। सो कहने का मतलब कि अगर टोटल पता लग जाए तो एक इलैक्ट्रोड का पता लग जाए, फिर दूजी का निकल जाता है। हुण प्रॉब्लम यह है भी एक किहड़ी दा पता होगा, उन्होंने सॉल्व करने लई असीं कि इलैक्ट्रोड ही इदां दी फिट कर लई नाल सैल दे, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल जिहदा इलैक्ट्रोड पोटैंशियल सानू ऑलरेडी पता सी, या जिहदा असीं अपने आप मान लिया कि इन्ना है, ਉਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗੀ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ weight ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕੈਥੋਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੀਏ ਐਨੋਡ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਜੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਾਲੀ ਆ, ਜੇ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਥੋਡ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਨੋਡ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਹੀ ਪੱਤੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਘੋਲ ਅਸੀਂ 1 ਮੋਲਰ ਕੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ HCl ਦਾ, ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਟ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਐਨੋਡ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨੋਡ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਐਨੋਡ ਮੀਨਸ ਲੌਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੌਸ ਕਰੇਗੀ। ਲੌਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ? ਆ H2C, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਬਣਨਗੇ, ਪਲੱਸ ਐਕਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? 2। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲੌਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਗੇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਤੇ ਗੇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? H2। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਕੈਥੋਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਨੋਡ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਐਨੋਡ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਦੂਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਆ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ EMF ਆਫ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰਜੇ ਲਵਾਂਗੇ? 0। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।